the topic that is in your syllabus, that is care of patients with traction, care of patients with fractures. ठीक है? So before going into the nursing care, पहले समझाना पड़ेगा कि what is traction, है ना? Traction क्या होता है, ठीक है? Fracture क्या होता है, ठीक है? So first I'll teach you about traction and I'll teach you about fracture. Then the next class I will teach you about nursing care. मतलब क्या क्या responsibilities है of a nurse to take care of a patient, ठीक है? With traction or with fracture, ठीक है? So the topic for today, that is traction and extension. Okay. So but before going into traction, okay, first we have to understand what is fracture. Okay, I hope everyone can see that the topic in your screen. Can you see the picture? सबको दिख रहा है pictures? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So you can see the definition of a fracture. So what is a fracture? बोलते हैं ना कि अरे उसको चोट लग गया, accident हो गया, उसको fracture हो गया, ठीक है? So what is that fracture? So a fracture is a break in the continuity of a bone. ठीक है? We know that a bone is a continuous, it is a continuous, thing, it's a continuous part of our body, ठीक है? So if there is any break, ठीक है, बीच अगर कोई इंजरी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके वजह से क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो रहा है, सो देयर कैन बी अ ब्रेक इन द बोन, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, ठीक है? तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रैक्चर, ठीक है? तो दूसरा डेफिनेशन इज फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन एनी बोन इन द बॉडी. सो इन आवर बॉडी देयर आर मेनी बोन्स, ठीक है? वी हैव द फीमर, वी हैव द ह्यूमरस, वी हैव द अल्ना, then we have carpal, metacarpal, ठीक है? These are bones. There are many bones in our body, ठीक है? So if there is any, अगर कोई accident या कोई भी injury या कोई भी trauma हो गया, तो because of the pressure of the accident क्या हो जाते हैं, हमारी bones में break हो सकता है. So उस condition को बोलते हैं fracture, ठीक है? So you can see in the picture on the side, है ना? There are 4 types. So I mean there are 4 pictures. So you can see if there is a slight break, ठीक है, छोटा सा crack on the bones, ठीक है, उसको बोलते हैं fissure, ठीक है? Then you can see the other picture. Okay, so you can see because of the fracture, है ना? Fracture की वजह से ये जो bone है ये 2 टुकड़े में हो गया, है ना? 2 parts. So one is this side and one the other side. Then comminuted fracture in several pieces. So you can see this is also another type where they are because of a fracture, because of any injury, ठीक है? तो ये जो bones है कि जो bones की जो break है वो pieces में distribute हो गया, ठीक है? It is breaking down into many pieces, ठीक है? So यहाँ पे 3 छोटे टुकड़े बन गया. So that is the in case of comminuted fracture, ठीक है? So comminuted fracture in several pieces, ठीक है? So you can see the small piece of bones, ठीक है? So ऐसे भी fracture हो सकता है patient को. And the other is fracture in 3 pieces, ठीक है? तो 2 areas में fracture हो सकता है, 2 areas में break हो सकता है. एक है इस side और दूसरा, one is on the left side and the other is on the right side, ठीक है? तो अगर 2 areas में break है bones में, so it can break into 3 parts, ठीक है? 1, 2 और 3. So fracture in 3 pieces with offset, ठीक है? So I hope you can see, I hope everyone can see this picture, because through this picture you will understand कैसे fracture हो सकता है. I mean मतलब after getting any injury in the body there can be cracks on the bones, ठीक है? Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Okay, so now coming to the next, these are the types of fracture, ठीक है? Fracture की भी बहुत सारी types हैं. एक, so the first is a normal. Okay, so this is a normal bone, ठीक है? बीच में कोई crack, कोई problem नहीं है. It is fully
it is pura continuous and there is no problem in the bone. So this is a normal bone. Then first type is transverse. Okay, so in transverse there is a slight so sorry for the disturbance. So in the first type of fracture, this is called as transverse. ठीक है, so in transverse ये जो break है ये straight. You can see this is a straight cut in the bone. ठीक है, so a straight cut or a straight break is called as transverse. Okay, so you can have people can have this type of fracture also. फिर oblique का मतलब है slanting kind of. ठीक है, तो oblique fracture you can see there is a slanting break. ठीक है, अगर ऐसे break मतलब ऐसे position में break हो रहा है bones में तो that is called as oblique fracture. Then we have spiral. ठीक है, so spiral में it is like this. You can see the red arrows. ठीक है, so spiral and oblique is almost very similar लेकिन थोड़ा इसकी angle अलग है. So you can see the angle also is different, है ना? Then next type is comminuted fracture. Comminuted fracture का मतलब है जब कोई भी break या कोई भी fracture होता है तो वो जो bone की particles हैं it is in many types. ठीक है, so it is broken down into many parts. Okay, small pieces में break हो रहा है. So this is called comminuted fracture. फिर आते हैं दूसरा टाइप है avulsion fracture. Avulsion fracture देखो, okay, so it is not in the body but it is at the end. ठीक है, ये ends होते हैं, end of the bone. ठीक है, so यहाँ पे break हो रहा है, so that is avulsion. Okay, so this type of fracture is called as avulsion. Then we have impacted. Impacted means देखो, ठीक है, impacted मतलब अगर break हो रहा है लेकिन it is cracking up also and it is cracking down. ठीक है, so you can see this picture. Okay, so this is called as impacted. ठीक है, then next is fissure. Fissure का मतलब है हल्का सा crack. ठीक है, bones में हल्का सा crack हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो bone है वो intact हो रहा है, मतलब it is still normal. ठीक है, normal है लेकिन हल्का सा crack हो रहा है सिर्फ superficially, so इसको बोलते हैं fissures. और लास्ट टाइप है ग्रीन स्टिक. ग्रीन स्टिक मतलब एज पे, है ना, बोन्स की एज पे ब्रेक हो रहा है. ठीक है, एंड इट इज देयर आर मेनी क्रैक्स आल्सो, तो इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? किसी को डाउट है? एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? Riya, can you see the screen? Okay, Riya's absent. ठीक है, so you can see this picture also. ठीक है, so this is a fracture. You can see यहाँ okay, so with the bones we have the muscles, है ना. so अगर कोई इंजरी या कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी फॉल या कोई भी ट्रॉमा, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, ज़्यादा प्रेशर आ रहे हैं बाहर से, तो क्या हो जाते हैं बोन्स फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेक हो सकता है. ठीक है, सो इट इज़ ब्रोकन इनटू 2. ठीक है, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं. ठीक है, जब कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाते हैं सो इट इज़ ब्रोकन इनटू 2, सो दे आर डिफरेंट नाउ. ठीक है, फिर देयर विल बी सम इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक्शन. ठीक है, तो हम ट्रैक्शन एक इंस्ट्रूमेंट है, सो एक प्रोसीजर है, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो दो बोन्स है वो हम अलाइन कर सकते हैं. वी आर ब्रिंगिंग इट टुगेदर. ठीक है, तो इस ट्रैक्शन की वजह से ये जो दोनों बोन्स हैं वो, क्योंकि ये दोनों अलग है, तो दे विल कम टुगेदर विद एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन इट इज गिविंग फोर्स, तो ये जो दोनों अलग बोन्स हैं वो एक साथ अलाइंड हो जाएगा लाइक दिस. तो दोनों ये जो दो पार्ट्स हैं वो एक सीधा लाइन पे आ रहा है. ठीक है, सो व्हेन टू बोन्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज द बोन्स, ठीक है, क्योंकि
ये अपने आप मिनरलाइज्ड हो जाते हैं, दे आर रिपेयरिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो अपने आप विद टाइम, ठीक है, विद टाइम आफ्टर अ फ्यू मंथ्स क्या हो जाते हैं, ये जो दोनों बोन्स हैं ये जॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एंड come back to normal function and it will become a normal bone. So we need traction, ठीक है, we need a traction, we need an external force or we need an extra procedure so that ये जो दो अलग अलग बोन्स हैं फ्रैक्चर की वजह से ये दोनों जॉइंट हो सके, ठीक है। So that procedure is called traction. Is this clear? Is this clear with this picture? Yes, First ma'am. of all, ठीक है, सो यू कैन सी इफ देयर इज एनी फ्रैक्चर, ठीक है, दो बोन्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, ट्रैक्शन की वजह से ये दोनों बोन्स जॉइंट हो रहा है एंड धीरे धीरे विद टाइम, इट कैन बी मंथ्स, इट कैन बी 3 months, इट कैन बी 4 months, सो आफ्टर दैट ये दोनों बोन्स जॉइंट होगा एंड इट विल बिकम अ नॉर्मल बोन, ठीक है। सो वी नीड ट्रैक्शन, ओके, इन फ्रैक्चर we need traction. So what is traction? The definition of traction is it is the use of weights or we can use rope, okay, or pulleys to apply force to tissues surrounding the broken bone, okay. So with the help of weights, with the help of pulleys, with the help of rope, we can put pressure or we can give external force to the tissues which is surrounding the fractured bone, ठीक है। तो इस ट्रैक्शन की वजह से जो भी सराउंडिंग टिश्यूज है अराउंड दी बोन्स उनको हम वी आर पुटिंग प्रेशर एंड अल्टीमेटली ये जो दोनों बोन्स है ये सीधा होगा, ठीक है, दे विल जॉइन टुगेदर, ओके। सो दिस इज ट्रैक्शन, okay, so you can see the pictures here, okay, there is skeletal fracture, skeletal traction, okay, this is a bone, humerus bone, जो हाथ पे bone है उसको बोलते हैं humerus, ठीक है। then there are many types of traction, एक है skeletal traction, ठीक है, और दूसरा है skin traction, okay, so you can see here skin traction to maintain proper arm position, okay. So this is traction, so you can see in this picture also, okay, so you can see these black color, these are called weights, ठीक है। तो इस weight की वजह से ठीक है, so what happens is जो भी broken fracture है, broken bone है, वो सीधा एक line पे आ जाएगा, सीधा line and they will join together. Then traction is applied to reduce a fracture, to reduce dislocation of any joint. हमारे body में बहुत सारी joints हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी dislocation हो गया, कोई भी इंजरी की वजह से जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन से चेंज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन, ठीक है। सो इफ देयर इज एनी जॉइंट डिसलोकेशन वी कैन रिड्यूस, इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रैक्शन। देन ऑल्सो ट्रैक्शन रिड्यूसेस और रिलीव्स पेन, देन it gives the rest to the limb in functional position, so it provides rest and comfort to the patient, ठीक है। जिसको फ्रैक्चर है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्शन इट वी कैन गिव रेस्ट ऑल्सो, इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ द बोन, तो इसलिए मैंने बोला है कि इफ यू वांट द बोन टू बी हील्ड देन वी कैन गिव ट्रैक्शन। then it overcomes muscle spasm and deforming forces, so it reduces the muscle spasm, ठीक है, muscle pain, ठीक है, फ्रैक्चर की वजह से मसल पेन हो रहा है तो वी कैन रिड्यूस दैट बाय यूजिंग ट्रैक्शन, and also we can use to correct any soft tissue contractures by pulling them gradually, ठीक है। सिर्फ इसमें सिर्फ बोन्स को हम अलाइन नहीं कर रहे, लेकिन जो टिश्यूज हैं, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं, वो भी हम उसको हम सीधा कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू करेक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज ऑल्सो, okay, so these are the application of traction, okay. Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then coming to the next, that is what are the materials, कौन सी equipments या क्या materials हमें चाहिए for traction. Number 1, एक mattress होना चाहिए, अच्छा वाला mattress, firm mattress, मतलब not so soft and not so soft and not so jumpy, एक फर्म एक हार्ड मैट्रेस होना चाहिए, और देयर शुड बी अ बेड बोर्ड, ठीक है। देन देयर शुड बी फैसिलिटी टू एलिवेट द हेड एंड, ठीक है, ये जो हेड एंड है
ठीक है, वो हम एलिवेट कर सकते हैं, उसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। देश वो इक्विपमेंट वो भी होना चाहिए। देन वी कैन एलिवेट द फुट एंड ऑफ द बेड, ठीक है। तो फुट एंड ऑफ द बेड भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं, या हेड ऑफ द बेड वो ऊपर या नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बेड हमें चाहिए, एंड फर्म या हार्ड मैट्रेस होना चाहिए। देन एन ओवरहेड फ्रेम, ट्रापीज, मोंकी रोप्स एंड साइड रेल्स। तो ये दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे पोल्स, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसको बोलते हैं ट्रापीज। और ये जो ट्रापीज है, ये ट्राइंगल वाला, इसको बोलते हैं ट्रापीज, जहाँ पेशेंट हाथ रखते हैं। देन वी हैव मोंकी रोप्स, ओके, ऑल द रोप्स एंड साइड रेल्स, ठीक है। बेड की जो साइड रेल्स है वो होना चाहिए, सो दैट पेशेंट विल नॉट फॉल। देन दे शुड बी बार, दे शुड बी पुली, ठीक है, पुलिस होना चाहिए, बार्स होना चाहिए, रोप होना चाहिए, हैंगर्स होना चाहिए, ठीक है। स्केलेटल ट्रैक्शन अपैरेटस एंड प्लास्टर कास्ट मटेरियल, ठीक है। प्लास्टर कास्ट वो वाइट कलर आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सीन मेनी ऑफ द पेशेंट्स क्या करते हैं, जब फ्रैक्चर हो जाते हैं तो प्लास्टर कास्ट लगाते हैं वाइट कलर, ठीक है। सो वो जो मटेरियल है, प्लास्टिक कास्ट की मटेरियल है वो होना चाहिए, ओके, दैट आल्सो शुड बी देयर जस्ट इन केस। देन ट्रैक्शन मस्ट ऑलवेज बी अपोज्ड बाय काउंटर ट्रैक्शन। कांस्टेंट केयर एंड विजिलेंस टू अवॉइड ऑल हैजार्ड्स ऑफ प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। तो हमें बेड पेशेंट को केयर देना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्चर्ड पेशेंट को हमें बेड बाथ देना है, ठीक है, एंड फुट केयर and back massage, ठीक है, so that we to prevent any bed sores या pressure sores, ठीक है। So these are the materials we require for traction. फिर आते हैं types, ठीक है। there are many types based on the method, ठीक है। So based on the method, एक है manual traction, ठीक है। मैनुअल ट्रैक्शन, इसके अंदर एक है स्किन ट्रैक्शन और दूसरा है स्केलेटल ट्रैक्शन, ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन अंडर मैनुअल ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्किन ट्रैक्शन क्या होता है। स्किन ट्रैक्शन इज रिलेटिंग विद द स्किन, ठीक है। स्केलेटल ट्रैक्शन का मतलब है रिलेटिंग टू द बोन्स, ठीक है। तो दो टाइप्स की हैं, एक है स्किन ट्रैक्शन और दूसरा है स्केलेटल ट्रैक्शन। Skin traction, it is a traction force which is applied over a large area of the skin. It can be of two types, adhesive and non-adhesive skin traction. Okay, so I will show you the picture. ये रहा, ठीक है। adhesive का मतलब है sticking, ठीक है। non-adhesive का मतलब है जो stick नहीं करते, मतलब it is not sticky to the skin, ठीक है। So have you heard about crepe bandage? Crepe bandage ऐसे purple नहीं, orange color या peach color bandage आते हैं. It is available in the pharmacy. ठीक है, एक लंबा सा bandage होते हैं, we call it as crepe bandage, है ना? So that is orange या peach in color. ठीक है, तो we can use this as this is a non-adhesive skin traction. Okay, so you can see here, ठीक है, हम patient को क्या करते हैं, ये मान लो ये फ्रैक्चर्ड लेग है, ठीक है। इस फ्रैक्चर्ड लेग को हमने एक क्या बोलते हैं इसको, there is a material, okay, there is an article which we can connect with the apply on the patient's leg, ठीक है। एक लंबा सा from the knee area to the foot area, ठीक है। So there is a long you can say article or any instrument, okay। So फिर वो लगाना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज लगाना है, ठीक है, क्रेप बैंडेज, ठीक है, which is not sticky, okay। Then after that ये जो end है ना, foot end, वहाँ पे एक knot है, so we can connect it with the rope, ठीक है। वो जो rope है वो हमें इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करना है, एंड वी हैव टू कनेक्ट इट विद द वेट, ठीक है। सो दिस इज स्किन ट्रैक्शन। सो व्हाट डज इट डू, ठीक है। ये जो वेट है, ये क्योंकि इसमें वेट है, इट कैन बी 3 kgs और 4 kgs, सो क्या हो जाते हैं, दिस वेट इट इज पुलिंग डाउन, ठीक है। यहाँ से नीचे जा रहे, इट इज पुलिंग डाउन, इट इज पुटिंग फोर्स,
ठीक है, जब ये नीचे जाते हैं वेट तो क्या हो जाते हैं, सो ये जो बोन्स है, फ्रैक्चर्ड बोन्स है, सो इट इज पुलिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स टुगेदर, जॉइंट करने के, ठीक है. सो दिस इज स्किन ट्रैक्शन. ओके, then this is non-adhesive skin traction. It is useful in thin and atopic skin. Okay, frequent application may be necessary. Attached traction weight must not be more than 4.5 kg. ठीक है, जो वेट हम लगा रहे हैं यहाँ पे देखो, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, इसको वेट बोलते हैं. ठीक है, सो ये जो वेट है ये 4.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड ये जो वेट के साथ एक रोप अटैच हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा पुली है. ठीक है, तो ये जो पुली है ये इसके साथ अटैच हो रहा है, ये जो हेड, ये जो फुट एंड, ठीक है, यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक नॉट है, वहाँ पे कनेक्ट करना है. ठीक है, एंड वी आर covering the legs of the patient and we are bandaging it with crepe bandage. Okay, non-adhesive मतलब it is not sticky. ठीक है, फिर एक दूसरा टाइप भी आते हैं adhesive का मतलब है which is sticking. ठीक है, so you can see, so this is a simple skin traction. Okay, it is very simple. Okay, then there is a gallows traction. This is for children like this also, ऊपर से कनेक्ट हो रहा है. सो ये जो पूरा बेबी की बॉडी है वो स्ट्रेट है, लेकिन उनकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लेग्स हैं वो ऊपर हो रहा है. ठीक है, बिकॉज द थिंग इज पुलिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, द वेट इज पुलिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम अप. Okay, then this is a skin traction adhesive tape. Adhesive का मतलब है sticking. So दो types हैं, एक adhesive और एक दूसरा non adhesive. ठीक है, non adhesive हम bandage यूज कर सकते हैं, crepe bandage या gauze pieces भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, gauze bandage. ठीक है, लेकिन adhesive में क्या होता है, वो sticking वाला, बहुत चिपक जाते हैं. ठीक है, so we can use two types. Then you can see here also skin traction kit and bandage institute. So ये जो है, this is a kit. ये जो लंबा सा, you can see this orange color, okay, which is connected with the legs. Okay, that is the skin traction kit. Okay, so these are you can see the pictures here. So this is also a skin traction. Okay, so you can see एक ये जो स्किन ट्रैक्शन किट है, हमने इसको सीधा लगाया है. ठीक है, विद द फुट एंड एट द फुट एंड, यहाँ पे एंड पे एक नॉट है, वो हम रोप के साथ अटैच कर लेंगे. एंड वो जो ये दो पुलीज हैं देखो, ठीक है, तो ये एक पुली है, ये दूसरा पुली है. तो ये जो रोप है ये हम पुली के साथ अटैच यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे एंड यू विल पुट अ वेट. ठीक है, लेकिन जो वेट है इट शुड नॉट बी 4.5 kg. ठीक है, तो क्या ये जो वेट है ये उसको नीचे पुल करे, जो रोप है उसको नीचे पुल कर रहे हैं. सो इट इज पुटिंग अ फोर्स ऑन द फ्रैक्चर्ड लेग. ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, ma'am. You can see here also. ठीक है, पहले हमें क्या लगाना है, we have to put that traction kit. ठीक है, ट्रैक्शन किट लगाने के बाद सीधा लगाना है, ये जो फ्रैक्चर्ड लेग है ये वहीं पे लगाना है. ठीक है, सो वी पुट द ट्रैक्शन किट स्ट्रेट. ओके, एंड देन आफ्टर दैट क्रेप बैंडेज है, उसको हमें सिक्योर करना है. ठीक है, देन यू कैन सी दिस येलो कलर रोप. ठीक है, तो ये फुट एंड में होता है. ठीक है, दिस शुड बी एट द फुट एंड. ठीक है, फिर यहाँ से वो जो रोप है वो पुली के साथ अटैच हो जाएगा एंड वो वेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो नीचे वेट उसको पुल कर रहे हैं, रोप को पुल कर रहे हैं एंड द रोप इज पुटिंग अ प्रेशर ऑन द पुटिंग अ फोर्स ऑन द फ्रैक्चर्ड एरिया. ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है, वो जो दो पार्ट्स ऑफ बोन्स है वो सीधा सीधा धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा एंड द बोन विल हील. Okay, so what are the contraindication for skin traction? This is for skin. Okay, abrasion, laceration on the skin. क्योंकि हम ये लगा रहे हैं ना क्रेप बैंडेज. ठीक है, क्रेप बैंडेज या स्टिकी बैंडेज अगर हम लगा रहे हैं तो जो स्किन है, क्योंकि इट इज एक्सपोज टू द स्किन, तो क्या हो सकता है, स्किन में एलर्जीज हो सकता है, स्किन में कट्स हो सकता है, स्किन में अब्रेशंस या
निशाना हो सकता है which can cause infection. Then patient can have dermatitis, that is infection of the skin. ठीक है, स्किन में रैशेस हो सकता है, ठीक है, और there can be any pus collection, ठीक है, so that is because of infection. Then any fragile condition of the skin, we should not use skin traction. Contraindication का मतलब है we should not use, ठीक है, we should not use skin traction if patient is having any allergies on the skin, if patient is having infection in the skin, कोई pus collection है तो हमें traction use नहीं करना चाहिए. If patient is having any fragile condition of the skin, बहुत ही sensitive skin है तो उस condition में भी हम traction नहीं लगा सकते हैं. Impairment of circulation, अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहे हैं, पेशेंट को अल्सर्स हैं, गैंग्रीन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी स्किन ट्रैक्शन यूज नहीं करना चाहिए. एंड ऑल्सो मार्क शॉर्टनिंग ऑफ बोनी फ्रैगमेंट्स वेयर मोर ट्रैक्शन वेट हैज टू बी अप्लाइड. Okay, so these are some of the contraindications of skin traction. Then coming to the skeletal traction, okay, so you can see skeletal traction is relating with the bones. ठीक है, जो हम डायरेक्टली बोन्स पे लगा रहे हैं फोर्स, दैट इज स्केलेटल ट्रैक्शन. ठीक है, सो यू कैन सी द पिक्चर हियर. सो ट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द बोन बाय मींस ऑफ पिन्स और वायर थ्रू द बोन. तो स्केलेटल ट्रैक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं, पिन्स या वायर यूज कर सकते हैं. ठीक है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, सो बाय पुटिंग पिन्स, बाय पुटिंग वायर, ठीक है, हम इस फ्रैक्चर्ड बोन को हम एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं. देन इट इज यूज मोर फ्रिक्वेंटली इन मैनेजमेंट ऑफ लोअर लिम्ब फ्रैक्चर्स. ठीक है, मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज. ठीक है, थाइस हो गया, ये जो हमारी लेग्स है, ठीक है, और एंकल. ठीक है, दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन यूज स्केलेटल ट्रैक्शन. Then it may be employed as a means of reducing or maintaining the reduction of fracture. तो skeletal traction मैंने समझाया है कि skeletal traction ये application, one of the application is to reduce fracture. ठीक है, fracture को reduce कर सकते हैं, alignment, realignment of bones हो सकता है इसकी वजह से, traction की वजह से. And it should be reserved for those cases in which skin contraction is contraindicated. अगर हम मतलब ये वाला कंडीशन जैसे डर्माटाइटिस या अब्रेशंस, ठीक है, इन कंडीशंस में हम स्किन ट्रैक्शन नहीं लगा सकते, तो दूसरा ऑप्शन है कि हम स्केलेटल ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस इज अ पिन. ओके, हमने एक पिन डाला है inside the bones and then it is connected to this traction equipment. Okay, so this is skeletal traction. What are the equipments? The most commonly used pins are Stayman pins, दूसरा है Denham pins या K-wire. ठीक है, so I think I have a picture. हाँ, yeah. So ये जो pins है, ठीक है, these are called Stayman pins. So they are different in nature. You can see the different in structure also. है ना, ये देखो, ये पूरा स्ट्रेट है लेकिन टिप पे ऐसे शार्प है. ठीक है, सेकेंड वन इज लिटिल बिट स्ट्रेट लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्लाइड है ना, इट इज स्लैंटिंग एंड इट इज एट द एंड देयर इज अ टिप. देन हियर आल्सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिजेस प्रेजेंट हो रहा है. ओके, एंड दिस आल्सो. सो दीज आर कॉल्ड स्टेमैन पिन्स. ठीक है, तो ये जो पिन्स है ये हम क्या करते हैं, ये बोन्स के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं. वी आर इंसर्टिंग इनटू द बोन्स. ठीक है, एंड ये इसको बोलते हैं बालर्स स्ट्रिप अप. ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन सी, ओके, लाइक यू शेप. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज बालर स्ट्रिप अप. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंसर्ट द पिन्स. ठीक है, कोई भी पिन्स हम यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर लो बोन्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ओके, ड्रिलिंग मशीन एंड मेनी इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, पिन्स डाल दिया इसके अंदर, बोन्स में डाल दिया पिन्स. फिर इसके बाद ये जो बालर स्टिरअप है ये हम साइड में कनेक्ट कर सकते हैं एट द साइड ऑफ द पिन्स. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ दिस यू कैन पे एक छोटा सा ओ शेप है ना. ठीक है, एट द एंड ऑफ द यू यहाँ पे
देयर इज अ ओ Yes, ma'am. शेप, यहाँ पे हमें रोप कनेक्ट करना है, रस्सी कनेक्ट करना है, ठीक है. सो वी कैन कनेक्ट रोप और एनी थ्रेड ऑल्सो, बट वी यूजली यूज रोप, ठीक है, क्योंकि रोप थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. सो वी यूज अ रोप एंड वी कनेक्टेड टू द पुली और टू द वेट, ठीक है. सो आई थिंक, एंड हाँ, दिस इज स्टेमैन पिन्स, ओके, यू कैन सी लाइक दिस. देन वी ऑल्सो हैव डेनहैम थ्रेडेड पिन, ठीक है. डेनहैम थ्रेडेड पिन डिफरेंस ये है कि पूरा बॉडी में देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट एंड देयर इज नो रिच, लेकिन बीच में रिच हो रहा है, ठीक है. फिर दोबारा स्ट्रेट हो जाते हैं, फिर दोबारा रिच हो जाते हैं. सो यू कैन सी द रिच हियर, ऐसे ऐसे स्पाइक्स में होता है, ओके. सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज स्ट्रेट, द बॉडी इज स्ट्रेट, फिर बीच में स्पाइक्स हो रहे हैं, फिर दोबारा स्ट्रेट होता है, फिर स्पाइक्स. सो इसको बोलते हैं डेनहैम थ्रेडेड पिन, ठीक है. तो ये जो डेनहैम थ्रेडेड पिन है, ये कैसे लगा सकते हैं, लाइक दिस, ओके. सो यू कैन सी देयर आर टू, यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है ना. तो वी कैन पुट फ्रॉम हियर, ये जो थ्रेडेड पिन, डेनहैम थ्रेडेड पिन है, ये हम ऊपर से लगा सकते हैं, एंड ओके, एंड वी विल कनेक्ट, we can go to B, so we can connect the two bones together and it will join the two bones, fractured bones together, okay. So this is the function of the Denham threaded pin, okay. So ऐसे लगा सकते हैं, and we have K wire, ठीक है. The other ये है K wire, so you can see like ये K wire है, wire is very small and thin, बहुत ही पतला है, ठीक है. सो वी कैन इंसर्ट इनटू द बोन्स, जहाँ पे भी फ्रैक्चर है वहाँ पे इंसर्ट कर लो, फिर वी विल यूज अ के वायर स्ट्रेनर, ठीक है. सो वी कैन कनेक्ट विद द वायर एंड यू कैन सी दिस, ठीक है. सो A B C D E F G, so you can see how they are inserting the wire and how they are connecting with the this strainer, okay. So this is how we are trying to put external force on the fractured bones, okay. This is K wire, okay. Sites of skeletal traction, okay. कौन सी sites या कौन सी bones हम skeletal traction use कर सकते हैं. Number 1 we can use on the olecranon, यहाँ पे जहाँ joints हैं, ठीक है, ये elbow वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं olecranon. So we can use there also. Then we can use on the distal femoral bone is the thigh bone, है ना. Most of the fractures thigh bones में ही होता है, ठीक है. Most of the fracture is the fracture of femur, ठीक है. So this is a distal femur. So here also we can use the skeletal traction. Distal here, proximal is a little bit below the knees, ठीक है. ये जो नी है इसकी थोड़ा नीचे, proximal tibial, okay. So ये जो bone है, this is the tibial bone, okay, that this is the below the knee. फिर distal tibial, okay, near the ankle area, and then we have the calcaneal here, okay, below the ankles, okay. So these are the sides of the skeletal traction where we can use skeletal tractions, okay. So is this clear with the skeletal traction? किसी को doubt है? Yes, ma'am. ठीक है. So based on manual traction, ठीक है, based on manual traction there are two types, एक है skin traction और दूसरा है skeletal traction. ये देखो, you can see the slide, okay. So based on the method, कि हम कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर, डिपेंड करते हैं on manual traction, okay. Manual traction, there is skin traction and there is skeletal traction. So these are the two types of traction under manual traction, ठीक है. Is this clear? Yes, ma'am. So you can see, देखो skin traction हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ यूज, we are not involving the bones, है ना. हम directly bones पे कुछ वायर या कोई भी पिन्स हम इंसर्ट नहीं करें, but we are doing on the skin,
है ना, हमने ये जो ट्रैक्शन किट है हमने लगाए हैं, फिर उसके बाद मेरे साथ पिक्चर या ठीक है, तो हमने लगाए हैं ट्रैक्शन किट, फिर उसके बाद हमने क्रेप बैंडेज से ऐसे रोल किया है टू मेक द टू सपोर्ट द ट्रैक्शन किट। ठीक है, सो दिस इज स्किन ट्रैक्शन, व्हाई, बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑन द स्किन। ठीक है, हम डायरेक्टली बोन्स पे यूज नहीं कर रहे, सो दिस इज स्किन ट्रैक्शन। Whereas skeletal traction is we are doing it on the bones, directly into the bones. We are inserting the pins, we are inserting the wire directly into the bones. Okay, so this is skeletal traction. Okay, like this. So is this clear with skeletal traction? किसी को doubt है? किसी को doubt है यहाँ तक? Okay, so now coming to the types based on the mechanism. Okay, based on mechanism, there are two types. एक है fixed traction और दूसरा है sliding traction. ठीक है, fixed traction, it is by applying force against a fixed point of a body. Okay, by using Thomas splint. Okay, so you can see this is a fixed traction. Okay, so ये Thomas splint और blue color दिख रहा है, एक ये डिवाइस होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज थॉमस स्प्लिंट। ठीक है, तो इस थॉमस स्प्लिंट या इस डिवाइस ब्लू कलर डिवाइस के थ्रू हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं टू अ फिक्स पॉइंट ऑन द बॉडी, ओनली ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट, ओके, ऑन अ स्पेसिफिक बोन और ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बॉडी। अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स देना है तो हम फिक्स ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो हमें थॉमस स्प्लिंट पूरा फिक्स करना चाहिए, जो डिवाइस है पूरा इसको फिक्स करना है। ठीक है, एंड वी कैन गिव द एक्सटर्नल फोर्स। देन नेक्स्ट इज स्लाइडिंग, स्लाइड करना। ठीक है, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट एज अ काउंटर ट्रैक्शन। ठीक है, सो स्लाइडिंग इज बाय टिल्टिंग द बेड so that the patient tends to slide in the opposite direction to the traction force। क्योंकि हम यहाँ पे traction force, यहाँ पे traction दे रहे हैं ना, यहाँ पे पुलिस यहाँ पे वेट लगा रहे हैं, सो द वेट इज पुलिंग द रोप दिस साइड नीचे। लेकिन अगर हमने बेड को या हेड एंड ऑफ द बेड को हमने नीचे कर दिया तो बॉडी के हिसाब से वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, गिव्स अ लॉट ऑफ फोर्स। सो ये जो वेट ऑफ द बॉडी है ये इस तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एंड वेट ऑफ the weight that can be 5 kg 6 kg वो नीचे इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, so it is just opposite direction। ठीक है, weight of the body is going down this way towards the left, and weight can be sandbags या any weight that is pulling the body, that is pulling the bones नीचे downward। ठीक है, so this is called as sliding traction। Okay, so it is just acting opposite direction। So for this we can use there is a Hamilton-Russell traction और दूसरा है Perkins traction। ठीक है, so these are the two types where we can use in sliding traction। ठीक है, this is clear with fixed and sliding। किसी को डाउट है? Anybody has any doubt? Okay, so in fixed traction, so you can see this is called as Thomas splint। ये देखो, ठीक है, वो जो मैंने दिखाया था ब्लू कलर, ब्लू डिवाइस, so this blue device, this is called as Thomas splint। So you can see the picture which is very clear here। Okay, so Thomas splint does not require gravity to achieve results। So with this Thomas splint we can give external force to a specific or to a fixed point on the body। Okay, so this is fixed traction। fixed traction का मतलब giving force to a specific area or specific fixed point on the body। sliding traction, ठीक है, ये देखो, ठीक है, sliding traction में क्या कर रहे हैं हम, जो head end of the bed है वो हम उसको नीचे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको नीचे कर रहे हैं तो बॉडी वेट की वजह से प्रेशर फोर्स इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बाय ग्रेविटी ऑल्सो एंड बाय बॉडी वेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं काउंटर ट्रैक्शन।
मतलब it is just the opposite of the traction. Okay, and so this is one, and the second is traction by weight. ये जो weight है, ठीक है, इस weight की वजह से we are pulling the fractured bones so that वो straight हो जाएगा. ठीक है, so यहाँ से भी force, ये जो weight है ये यहाँ से भी उसको नीचे pull कर रहे हैं और इस तरफ भी body भी और gravity को भी वो bones को pull कर रहे हैं. So this is called as sliding traction. Okay, so you can see there's a picture also. This is sliding traction. Okay, so is this clear with sliding traction? Yes, ma'am. Okay, then there are so many splints also we can use. Okay, this is called a halo splint. ये halo splint कब use कर रहे हो? जब skull fracture हो रहा है ना? There is a skull fracture, head injury. Head injury में there are 3 types of fracture. There are 3 types of injury. एक है skull injury, एक है सबसे पहले तो scalp injury होता है, हमारी scalp, ठीक है. फिर दूसरा आते हैं skull injury, हमारी जो skull वो injured हो रहा है, fracture हो रहा है, क्योंकि skull you know it is hard. And the other is brain injury, जब हमारी brain tissues affected हो जाता है, damage हो रहा है, ठीक है. So there are 3 types in head injury. So ये जो halo splint है, ठीक है, ये हम कब यूज कर रहे हैं? जब skull fracture हो रहा है पेशेंट के ऊपर. So whenever there is a skull fracture, we can use this halo splint. ठीक है, so यहाँ पे holes हो, you can see there are holes on the sides. ठीक है, so from the holes we can connect with the device and यहाँ पे एक pulley attach, ये एक weight attach करनी है. ठीक है, तो ये जो weight है ये इस जो भी fractured parts है of the skull वो उसको join up कर देंगे. ठीक है, so this is a halo splint. Then this is skull traction. This is also we can use. Okay, so skull traction, you can see this. It is different from halo. Okay, so you can just you can see like this. This is a picture of skull traction. फिर आते हैं Dunlop's traction. ठीक है, ये भी है. Okay, so Dunlop's traction is like this. It is connected. There is a device. Okay, which are a little bit up. Okay, and ये देखो, the skin is covered with elastic bandage. ठीक है, हमने यहाँ पे भी एक वो लगाए हैं weight और ऊपर भी weight लगाए, तो there are 2 weights. ठीक है, this is called Dunlop's traction. Then we have pelvic traction, pelvic area के लिए. ठीक है, so any injury, any trauma or any injury or any damage to the pelvic bone, तो उसके लिए हम pelvic traction use कर सकते हैं. So you can see here how it is connected, है ना. So you can see this is the weight. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी kgs, यहाँ पे measurements लिखा होगा 4 kg, 5 kg, 6 kg. ठीक है, तो डिपेंड करते हैं कि हमें कितना kg weight देना है पेशेंट के ऊपर. Then there is a Bryan's traction. ये बच्चों के लिए है. So you can see both legs are connected to a traction, or we can call it as gallows traction. Okay. This is called Buck's traction. Buck's traction, ये देखो, it has a trapeze also. एक trapeze है, triangle, जहाँ patient can hold their keep their hands support के लिए. Okay, and all these are connected. All these instruments, poles are connected. So this is a Buck's extension. और यहाँ पे weight है. ठीक है. So is this clear about tractions? किसी को doubt है? You can see there are so many types of traction. ठीक है. Any doubts with anything? किसी को doubt है, issue है? Please let me know.